Hello guys, I am Dr. Devendra Mishra, working as assistant professor in chemistry at Bidla Institute of Applied Sciences, right? Also running this tetrahedron chemistry classes channel, and here are the links available to approach me. Hello friends, welcome again to tetrahedron chemistry classes. So guys, in the last lecture you have seen how we can generate the your organelle diagrams for the different electronic systems, okay, in the octahedral field as well as the tetrahedral field. You have seen the concept with the trick also, and I hope that now you understand how actually we can generate और memorize the organelle diagrams. हालांकि बहुत मुश्किल है इनको memorize कर पाना, लेकिन जो trick मैंने आपको दिया है, if you know that particular trick then there is no difficulty. आप 2-3 बार practice करिए तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा. But as I said earlier, it is not enough to actually mug out or to learn your organelle diagram. सिर्फ उसका रट्टा लगाने से कुछ नहीं होगा. You should know how to actually how to use those organelle diagrams when it comes to solve the problems actually. Okay, so in this session I will solve 10 to 12 somewhere around 8 to 10 problem which I have taken from the previous year GATE examination as well as the NET examination. Okay, वहां से मैंने ये problems ली हैं, तो इन problems को हम solve करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि कंसेप्ट किस तरीके से लगाया जा सकता है. सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. द स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट सिंबल एंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस फॉर टाइटेनियम 2 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स. हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स है, टाइटेनियम का 2 पॉजिटिव है. आपको मालूम है वाटर एक वीक लिगेंड होता है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. You know titanium is in +2 oxidation state, okay, and when titanium is in +2 oxidation state, it's a D2 system. Okay, it's a D2 system, okay, because it is having the atomic number of 22. When you remove the 2 electrons from it, then it will have the 20 electrons, and 20 electrons 18 would go to the argon and rest 2 will form the D2 system. तो ये D2 system आपका बन गया. and since this water is the weak ligand, तो अब आप क्या कर सकते हैं, इन दो जो इलेक्ट्रॉन्स आपके हैं इनको d ऑर्बिटल्स में फिल कर सकते हैं, राइट, in that manner. So this is electron number 1, this is electron number 2. अब आपने ग्राउंड स्टेट टर्म इसके लिए सेलेक्ट करना है. तो सबसे पहले आपने देखना है कि आपके जो L की वैल्यूज होती हैं, that is 0, 1, 2, 3, यहीं तक हम करेंगे. S, P, D, F आपके ये टर्म होते हैं. एंड यू नो व्हेन यू फिल द इलेक्ट्रॉन हेयर, इसके लिए +2 वैल्यू, इसके लिए +1 वैल्यू, इसके लिए 0, इसके लिए -1, इसके लिए -2. ओके, दिस इज -2. ओके, नाउ इफ यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द L, तो L की वैल्यू के लिए एक इलेक्ट्रॉन इसमें है तो +2, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है तो +1, दैट विल गिव यू 3. ओके, एंड व्हेन यू हैव द L वैल्यू ऑफ 3, यू कैन कोरिलेट दैट वैल्यू फ्रॉम हियर. तो आपके पास क्या टर्म मिल गया? सो यू आर हैविंग द F टर्म. Clear? Now you can check the spin multiplicity. So you can write the spin multiplicity. तो इसके लिए दो फॉर्मूले मैंने अभी आपको लास्ट लेक्चर में बताए हैं. आइदर यू कैन यूज 2+1, ओके, और यू कैन यूज वेरी सिंपली द n+1. हालांकि ये ज्यादा आसान होता है, बट फंडामेंटल यही मैंने बताया था. बट टू सेव टाइम आई विल यूज द n+1. ओके, दोनों से आंसर एक आएगा. तो n मीन्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विद द सेम स्पिन एक्चुअली. तो कितने हैं? 2, 2+1 = 3. तो ये इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ गई. तो अगर आपने इसका टर्म जनरेट करना है, तो जो आपका F, जो वैल्यू आपकी ऑर्बिटल की आई स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टर्म आया है, इसके ऊपर मल्टीप्लिसिटी आपको पुट करनी पड़ती है. सो टर्म का मतलब है दिस वैल्यू एंड दिस. अगर मैं टर्म सिंबल कहूंगा तो फिर यहाँ पे J का वैल्यू भी रखना पड़ेगा, बट आई एम नॉट सॉल्विंग दोस प्रॉब्लम हियर. I have solved that but these particular problems where you have to actually determine the term symbol in my previous case, in my previous lectures. Okay, so you can go through and search. Okay, so this is actually your free ion. Okay, this 3F is the free ion term. Now अब इस 3F को आप देखें, ये octahedral field है, D2 system है. Now refer diagram, refer organelle diagram. तो इसके लिए अब organelle diagram को अगर आप देखेंगे, so you can straight away go for the organelle diagram. It's a you can see it's a D2 system. Okay, D2 octahedral. So you can see here, so this is D2, this one is D2 and this is octahedral. So terms are T1G, T2G, okay, then T1G again, then A2G. तो इसके लिए इतने टर्म है. और सबसे नीचे कौन सा वाला है आपका? T1G है. तो ये T1G इसके लिए ग्राउंड स्टेट टर्म होगा, जिसकी मल्टीप्लिसिटी ऊपर आपने निकाली है 3. तो ग्राउंड स्टेट टर्म क्या आ जाएगा? 3T1
जी। ओके, तो यहां से रेफर करके अगर आप देखेंगे, इनको ध्यान में रखिए, यही वैल्यूज मैं आपकी यहाँ पे समराइज कर रहा हूँ। सो टोटल आपके जो अकॉर्डिंग टू द ऑर्गल डायग्राम आपको मिला है, 3T1G, ओके, प्लस 3T2G, एंड देन यू गॉट योर 3A2G। ये तीन ही तो मिले हैं, ये दो बार मिला है तो एक P के साथ मिला है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। सो दीज थ्री टर्म्स एक्चुअली यू आर गेटिंग देयर। ओके, अब इनमें से अगर आप देखेंगे ग्राउंड स्टेट टर्म कौन सा है, तो ये वाला आपका ग्राउंड स्टेट टर्म है। दिस इज ग्राउंड स्टेट टर्म। नाउ यू कैन चेक द ऑप्शंस। तो 3T देखिए, ये A2G तो है नहीं, तो ये ऑप्शन आपका पॉसिबल नहीं है। T1G है, ये ठीक हो सकता है। T1G है, ये भी ठीक हो सकता है। A2G तो हो नहीं सकता क्योंकि ग्राउंड स्टेट टर्म नहीं है, वो तो आपका हाई एनर्जी टर्म है, आपने यहाँ पे देखा अभी। ओके, सो A2G इज द हाई एनर्जी टर्म, तो वो तो है नहीं, तो इसको यहाँ से हटा सकते हैं। नाउ द कंपटीशन इज बिटवीन इन बिटवीन दीज टू। तो कितने ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं, तो यहाँ पे आप ट्रांजिशंस भी बहुत आराम से देख सकते हैं। देखिए कितने ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन 1 विच इज T1 विच इज फ्रॉम T1G to T2G, and transition 2 this is T1G to T1GP, and transition 3 which is from T1G to A2G। यहाँ तक के ट्रांजिशंस है। ओके, सो total 3 transitions are possible। तो if you can see 3 transitions, I can write here 3 transitions। ओके, and to summarize 3T1G, एक ट्रांजिशन तो ये वाला है आपका, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन कभी एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकते हैं तो मैं इसको पूरा बता देता हूं। और दूसरा ट्रांजिशन है 3A2G, ओके, और तीसरा ट्रांजिशन है 3T1G से फिर 3T1G, लेकिन वो P टर्म का है। ठीक है, ये देखिए P टर्म का है। दिस एक्चुअली 3T1G इट इज कमिंग फ्रॉम द P टर्म। ओके, तो इस तरीके से है। तो टोटल ट्रांजिशन 1 2 3, तो यहाँ तो दो ही ट्रांजिशन दिखा रहा, यहाँ 3 दिखा रहा। दैट मीन ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, देन विल मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम वेरी क्विकली। सो से दिस इज द प्रॉब्लम, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस शो दिस डायग्राम्स। तो देखिए ये तो बहुत इजी सा नजर आ रहा है, इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है नहीं। तो ट्रांजिशंस आपके कहाँ से कहाँ तक होने हैं, ये आपका 3A2G से जो गिवन ट्रांजिशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द गिवन ट्रांजिशन इन द क्वेश्चन। ओके, एंड गिवन ट्रांजिशन इज फ्रॉम 3A2G टू 3T2G। ठीक है, तो ऐसे यहाँ उल्टा लिखा है, बट ऐसे लिखा है, एरो की इंपॉर्टेंस है, बाकी कुछ नहीं है। ओके, सो नाउ यू कैन टेक योर क्रोमियम। क्रोमियम इज हेयर इज इन 3 पॉजिटिव स्टेट, और क्रोमियम अगर आपका 3 पॉजिटिव स्टेट में है, दैट मीन इट्स अ 3D3 सिस्टम। ओके, देन यू कैन गो फॉर द आयरन। आयरन 3 पॉजिटिव, तो आयरन 26 होता है, 3 माइनस करिए तो इसमें से 23 आएगा, तो आयरन आपका 3D5 सिस्टम हो गया। ओके, एंड सिमिलरली यू कैन गो फॉर द कोबाल्ट। कोबाल्ट 3 पॉजिटिव 27, इसमें होते हैं 3 निकाल दिए, 24 बचा। ठीक है, तो 24 और 2 इट्स अ 3D6 सिस्टम। इसके अलावा आप निकिल पे चले जाइए। निकिल 2 पॉजिटिव, निकिल टोटल 28 होता है, 2 माइनस कर दीजिए, 6 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 6 + 2 इट्स अ 3D8 सिस्टम। ओके, तो ये आपके इलेक्ट्रॉन्स है। और इन सब केसेस में अगर आप देखते हैं कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे आएगी, देखिए इसमें तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। अगर आप इनको डी ऑर्बिटल्स में फिल करते हैं तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी n+1 = 4। तो कितनी आ रही है, 4 आ रही है, लेकिन आपके ट्रांजिशन में 4 तो दिया ही नहीं है, तो ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता। ओके, देन यू गो फॉर द 3D5। देखिए ये वीक फील्ड है आपका, तो 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, इस केस में कितना आ जाएगा, n+1, दैट मीन 5 + 1 = 6। तो 6 भी नहीं दिया है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। देन यू गो फॉर द कोबाल्ट। स्ट्रॉन्ग है, लेकिन 3 आप देखिए 6 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, तो 6 इलेक्ट्रॉन आप स्ट्रॉन्ग में भरेंगे, 1 2 3 5 हो गया, तो 6 इलेक्ट्रॉन भरना है इसके इसमें आपका। ओके, तो अगर आप इसकी स्प्लिटिंग करते हैं, सी 6 इलेक्ट्रॉन्स की अगर आप स्प्लिटिंग करते हैं, तो स्प्लिटिंग करने पे भी आपको पता है कि सारे के सारे किस में आ जाएंगे, इस T2G में आ जाएंगे। मैं रिकॉल करें, मैंने आपको बताया है, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, कोबाल्ट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इन दैट केस अमोनिया विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग लीगेंड। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहीं पेयर हो जाएंगे 6 की 6, तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो 0 + 1 = 1 ही आएगा। तो 1 भी आपके ट्रांजिशन में नहीं दिया है, तो दिस कैन नॉट बी द आंसर। तो सिर्फ और सिर्फ डी ही आपका ऑप्शन बचता है। और अगर डी के लिए आप बनाना भी चाहें, देखिए वीक फील्ड है, और अगर वीक फील्ड है, इसको आप इस तरीके से ब्रेक भी करेंगे, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन यू हैव टू फिल, 1 2 3 4 5 6
Okay, and then 7, then 8. So how many unpaired electrons are there? 2 unpaired electrons are there. तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी n+1 या 2s+1 के हिसाब से कितनी हो जाएगी आपकी? 2+1 इक्वल्स टू 3. तो सिर्फ 3 ही का ही तो ऑप्शन नजर आ रहा है. जब 3 का ऑप्शन नजर आ रहा है तो इसका मतलब ये वाला जो ट्रांजिशन है वो सिर्फ डी में ही पॉसिबल है. सो दिस इज वन वे ऑफ डूइंग. अब ये आपके लिए कंफ्यूजन हो सकता है कि ये ए टू जी कहाँ से आ रहा है. तो इस ए टू जी के लिए भी आप कर सकते हैं. ए टू जी कैसे निकलेगा देखिए. इसमें आप ऐसे लगा लें इसको. ये आपके ईजी थे. तो ये वाला ईजी है. ओके. और या अगर आप इसको नहीं भी करें, चलिए अगर आप इसको नहीं भी करते हैं तब भी आपको ऑप्शन यहीं से ही मिल जाता है. एक्चुअली में जब आप इसके लिए करेंगे तो वैल्यू आएगी जीरो. और वैल्यू जब जीरो आएगी इसके लिए आपकी, तो एस ऑर्बिटल की तरफ जाएगा. और एस ऑर्बिटल जो टर्म, एस ऑर्बिटल के लिए जो टर्म होता है मैंने पहले ही आपको बताया. इधर देखिए, I can show you. Sorry, it is not here. Yes, देखिए, ये देखिए, ये आपका एस ऑर्बिटल है. तो इसके लिए टर्म कितना होता है आपका? A1G टर्म होता है. ठीक है. हालांकि यहाँ पे A2G दिया है, कुछ सिमेट्री की प्रॉपर्टीज में रही होगी. तो आपका काम सिर्फ इसी से चल सकता है. इस प्रॉब्लम को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. ओके. देन दिस प्रॉब्लम हैव बीन आस्क्ड इन द गेट 2010 एग्जामिनेशन. और इसमें क्या दिखा है? द क्रिस्टल फील्ड सिंबल फॉर द ग्राउंड स्टेट ऑफ MnCN4 MnCN6 होल 4 नेगेटिव. अच्छा, इसके लिए आपने ग्राउंड स्टेट टर्म निकालना है. क्या है? सो अगेन यू कैन सी इन दैट केस मैग्नीज इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. ओके. So I'm writing Mn2 positive, and see, I hope you are able to calculate the oxidation state of this one. Okay, नहीं है तो आप मेरे पुराने लेक्चर्स में जाके मेरे बेसिक्स से जो और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लेक्चर हैं वहाँ पे जाके देख सकते हैं. ओके. एंड व्हेन मैग्नीज इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इट्स अ 3d5. तो ये 3d5 मैंने आपसे डिस्कस किया नहीं है अभी तक. किसी वहां पे भी मैंने ऑर्गल डायग्राम में भी डिस्कस नहीं किया है. लेकिन मैं बता दूं, देखिए, सिंस दिस साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, अब आप क्या करते हैं, अगर आप इसको ब्रेक कर दे, इसको इस तरीके से स्प्लिट करते हैं. ओके. एंड देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स यू आर हैविंग? 5. तो 5 की 5 इलेक्ट्रॉनों को यहीं फिल होना पड़ेगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है. ओके. ऊपर आपका नहीं जा सकता है. इस केस में आपकी पेयरिंग एनर्जी बहुत जो है ज्यादा हो जाएगी, तो उसको नहीं कर पाएंगे. तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आपको इसमें, इस केस में जो है अनपेयर्ड मिल रहा है. सो व्हेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 1, यू कैन राइट n+1 इक्वल्स 2. So that mean n is 1, number of unpaired electron, that mean 1 + 1, that will give you the 2. ठीक है. तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आ रही है? 2 आ रही है. और आपको पता है ऊपर जो लिखी होती है वो होती है स्पिन मल्टीप्लिसिटी. तो ये 6 है, ये 5 है, ये 1 है, 2 सिर्फ इसमें ही है. तो ऑब्वियस आंसर आपका क्या हो जाता है? यही वाला हो जाता है. ठीक है. सो देखिए कितनी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. ऑर्गल डायग्राम में भी जाने की जरूरत नहीं है. अगर ग्राउंड स्टेट देखना ही चाहते हैं तब आप इसके लिए ऑर्गल भी बना सकते हैं, जो मैंने नहीं बनाया है. ओके. और मैंने पहले भी बताया था, इट इज एक्चुअली Mn5 आर द special cases which are best studied in your Tanabe-Sugano diagram. Okay, but your purpose actually is solved by solving this much of only. Okay. Okay guys, now my next problem is, in its electronic spectrum, hexa aqua vanadium 3 ion exhibit 2 absorption bands. अच्छा, 2 absorption band दिखा रहा है. कह रहा एक इतने पे दिखा रहा है, 17,800 पे, एंड द सेकंड वन इज 25,700 सेंटीमीटर इनवर्स. रिमेंबर इट इज इन सेंटीमीटर इनवर्स. ओके. सो देयर वुड बी द डायरेक्ट रिलेशन ऑफ द एनर्जी. ओके. सो इस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं. सो हाउ वी कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम? सी गाइस, इट्स वेरी इजी. पहले तो वेनेडियम देख लें आप क्या है. सो आई एम राइटिंग हियर माई वेनेडियम इन दैट केस इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. सो वेनेडियम इज 23. अब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो 20 ही बचेंगे. तो इट्स अ 3d2 सिस्टम. ओके. इट्स अ 3d2 सिस्टम. सो गाइज, मैं इसको बहुत तेजी से कर रहा हूँ. 3d2 सिस्टम मैंने आपको बता दिया. मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने मेरे लेक्चर्स फॉलो किए हैं और आप ये चीजें बहुत आसानी से जानते हैं. फाइन. एंड दिस वाटर इज द वीक लिगेंड. एंड व्हेन द वाटर इज द वीक लिगेंड, तो आप अभी इसकी स्प्लिटिंग भी ना कराएं, कोई जरूरी नहीं है. सीधे से आप इलेक्ट्रॉन भर दें. 2 इलेक्ट्रॉन भरने, 1 and 2. ओके. देन यू गो फॉर द वैल्यू ऑफ द एल. दिस इज +2, दिस इज +1. अगर आप एल का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 + 1. एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इसमें, 2 इसका, दैट इज 3. और अभी आपने देखा है 3 के लिए क्या आता है? एल का वैल्यू 0 1 2 3 S P D F. तो इसके लिए जो टर्म आ जाएगा वो कितना आ जाएगा?
एफ टर्म आ जाएगा। नाउ द स्पिन मल्टीप्लिसिटी दैट इज n+1, कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यू हैव 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 + 1 = 3, so if you add multiplicity to it then you have the 3f term। ओके, अब जब आपका 3f टर्म आ जाता है तो इस अब आप सीधे आप आ जाइए अपने तनाबे-सुगानो डायग्राम में। ओके, सॉरी, ऑर्गल डायग्राम में। so now you see your orgal diagram, so it was your actually D2 system, okay, and in octahedral। तो टर्म इसके लिए क्या है, देखिए टर्म यही है, T1G, T2G और A2G। T1G 2 बार है आपका, एक पी से आ रहा है A2G, तो ये टर्म इसके लिए आ रहे हैं। सो आई कैन राइट these terms according to the diagram, okay, orgal diagram। so I can write, I am writing the OD for orgal diagram। so T1G मल्टीप्लिसिटी कितनी 3 है, तो यू विल राइट 3 हेयर, यहाँ पे भी देखिए 3 मल्टीप्लिसिटी है, प्लस दैट इज 3T2G प्लस 3A2G। और इन सब में अगर आपने डायग्राम में अभी आपने देखा है तो सबसे नीचे कौन सा टर्म था, ये वाला ग्राउंड स्टेट टर्म था। ओके, ये टर्म कौन सा था, ग्राउंड स्टेट टर्म था। ठीक है, और ग्राउंड स्टेट टर्म होने की वजह से अगर आप इसमें आप ट्रांजिशंस देखना चाहें, सो हाउ मेनी ट्रांजिशंस आर पॉसिबल, तो 3 ट्रांजिशन इसमें नजर आ रहे हैं। ये देखिए 1 2 3 3 ट्रांजिशंस आर देयर, लेकिन आपके क्वेश्चन में आपको कितने ट्रांजिशन दिए हैं, सिर्फ 2 ही ट्रांजिशन दिए हैं। वो ट्रांजिशन कौन से हैं आपने वो पता लगाना है। देखिए ये भी आसान है, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई। तो पहला ट्रांजिशन इज फ्रॉम T1G टू 3T2G, दिस इज ट्रांजिशन नंबर 1, ओके, एंड देन 3T1G टू 3T1GP, ये आपका दूसरा ट्रांजिशन है मान लीजिए। देन 3T1G से 3A2G, ये 3 ट्रांजिशन है। देखिए ऐसे ही तो है, सबसे लास्ट वाला ट्रांजिशन यही है तो मैं इसको लास्ट में लिख रहा हूँ, सेकेंड वाला ट्रांजिशन P में है तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, फर्स्ट वाला ट्रांजिशन यहाँ है। ओके, नाउ यू हैव गिवन द वैल्यू से। अब इसके लिए अगर आप देखें कि वैल्यू कौन सी है, राइट, तो ये आपका न्यू 1 हो जाएगा जो पहला ट्रांजिशन है, दूसरा न्यू 2 हो जाएगा, तीसरा आपका न्यू 3 हो जाएगा, जो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला है वो न्यू 3 होगा। ओके, तो आपने इसमें बताना क्या है, देखिए आपने सिर्फ एक न्यू 1 और न्यू 2 बनाना है। तो न्यू 1 तो आपका ये हो जाएगा विच इज 17,800 सेंटीमीटर इनवर्स, ओके, और न्यू 2 आपका हो जाएगा 25,700 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, तो देखिए इसकी वैल्यू ज्यादा है, 3T1G से 3T1JP तक वैल्यू ज्यादा है, और देखिए ये ज्यादा भी है, 3T1G से 3T1GP तक ये वैल्यू आपकी, सॉरी ये वाली सेकंड वाला ट्रांजिशन, ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू आपकी छोटी है। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन गेट योर आंसर। so what could be the possible option here? Okay, so transitions are given actually, 3T1G 3T2G, okay, it is matching। second 3T1G so 3T1JP, ओके, दिस इज ऑल्सो मैचिंग। तो ऑप्शन 1 ही आपका साफ करेक्ट नजर आता है। अगर आप बाकी ऑप्शन देखेंगे, देखिए पहला ट्रांजिशन ये क्या कह रहा, 3T1GF से 3T1JP कह रहा, जबकि ये पहला ट्रांजिशन है ही नहीं हमारा। ओके, सो दिस कैन नॉट बी योर आंसर। ठीक उसी तरीके से दूसरा 3A2G, भाई A2G तो आपका है ही नहीं, तो ये हो नहीं सकता आपका। ऐसे ही ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि स्टार्ट कहां से करना है, 3T1G से करना है। सो यू कैन सी द हाउ इजी द प्रॉब्लम इज, बट इफ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ओनली इफ यू हैव द आइडिया अबाउट योर orgal diagrams। Okay guys, and then there comes your next problem which has been asked in the June 2013 examination। 3 bands in electronic spectrum of the hexamine chromium 3 ion are due to the following। अच्छा, ये कहता है कि ये 3 आपको दिए हुए हैं और जो 3 बैंड्स आ रहे हैं इसमें वो किसकी वजह से हैं, इसकी वजह से है, इसकी वजह से, इसकी वजह से है, या इनमें से किन्हीं 2 का कंबाइंड इफेक्ट है। तो गाइज ये भी बिल्कुल सिंपल है। देखिए इस केस में अगर आप देखेंगे क्रोमियम इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट मीन इट्स अ 3D3 सिस्टम। ओके, +3 24 इसका एटॉमिक नंबर होता है, -3 तो 21 बचे, 18 आर्गन का चला गया। ठीक है, 3 बचे तो 3D3 सिस्टम हो जाएगा। व्हेन इट इज हैविंग द 3D3 सिस्टम, ओके गाइज, so you can straightforward put 1 2 3। okay, so this is +2, this is +1, this is 0। so if you calculate the L value, that is +2 and +1 and +0, that will give you the 3। अभी अभी आपने देखा है कि 3 के लिए क्या टर्म आ रहा है हमारा, F। इससे वाली प्रॉब्लम में तो आपने देखा F आ रहा है। now if we check the spin multiplicity n+1, n is the number of unpaired electron, that is 3 3 + 1 = 4। so if you put the multiplicity here, so it is actually 4F। तो क्या टर्म आ रहा है इसके लिए, देखिए 4F टर्म आ रहे हैं।
राइट। और 4f टर्म के लिए अगर आप तनाबिस उगा सॉरी अब अपने ऑर्गल डायग्राम को आप देखेंगे, ठीक है, तो उस ऑर्गल डायग्राम को आपने देखना है, बट रिमेंबर इट्स अ D3 सिस्टम, ओके गाइज, इट्स अ D3 सिस्टम। सो नाउ यू मूव टू योर डायग्राम। दिस इज D3 ऑक्टाहेड्रल, ओके, दिस इज D3 ऑक्टाहेड्रल, यहां मूव करना है। तब देखिए आपके जो टर्म्स हैं वो क्या है, A2G, T2G और T1G। और T1G यहाँ पे दो हैं, एक यहाँ से आ रहा है, एक आपका ऊपर से आ रहा है। सो आई कैन राइट ऑल द टर्म्स, आई कैन समराइज ऑल द टर्म्स हेयर, ओके, अकॉर्डिंग टू द ऑर्गल डायग्राम। आई कैन राइट A2G प्लस T2G प्लस T1G। और आपने देखा ये सबसे नीचे था अभी डायग्राम में। सो दिस इज योर ग्राउंड स्टेट टर्म। तो पहला तो ये देखिए ग्राउंड स्टेट टर्म कहाँ का, A2G देखिए, अब ये क्या ग्राउंड स्टेट टर्म है, मल्टीप्लिसिटी 4 है, इसको आप सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, 4A2G, ओके। नाउ चेक 4A2G, दिस कुड बी योर आंसर, दिस कुड बी योर आंसर। अच्छा, यहां से तो सॉल्व होता नहीं क्योंकि सब में ये आ रहा है आपका। अब ट्रांजिशन आपने चेक करना पड़ेगा, ओके। अब आप इसमें ट्रांजिशंस को भी चेक करने की बात अगर करते हैं तो यहां से आप देखिए टोटल ट्रांजिशंस, इफ यू चेक द टोटल ट्रांजिशंस हेयर, तो डायग्राम देख के पहले इनके ट्रांजिशंस नोट कर लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी रहेंगे। ट्रांजिशन है A2G से T2G, A2G से T1GP और A2G से T1G। तो तीन ट्रांजिशन टोटल पॉसिबल है। सो आई एम समराइजिंग दोस ट्रांजिशंस हेयर, राइट। सो फर्स्ट ट्रांजिशन वाज 4A2G से लेके है आपका 4T2G तक, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा है 4A2G से then 4T1G, again there is no problem in that, and my third transition is 4A2G to 4T1GP, okay। so देखिए spin multiplicity 4, spin multiplicity 4, 4 and 4, 4 and 4, 4, तो ये सारे के सारे तो allowed transition है, spin allowed transitions, they all are the spin allowed transitions, okay। और यहां से आप देखें ये C वाला जो है आपका, ये है spin forbidden transition, this is what spin forbidden transition। Why spin forbidden transition? This one 4A2G to 2EG, because here spin multiplicity is 4, here is 2, और spin rule यही बोलता है कि spin multiplicity change नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका जो है सबसे लोएस्ट एनर्जी का ट्रांजिशन होगा, या सॉरी आपका जो है लोएस्ट ट्रांजिशन होगा, ओके। इसकी इंटेंसिटी आपकी सबसे कम होगी, राइट। किसकी, इस वाले की। अब देखिए इंटेंसिटी ऑफ ए इज लोएस्ट, इट कैन नॉट बी लोएस्ट ए, क्यों, क्योंकि ये आपका अलाउड ट्रांजिशन है तो लोएस्ट नहीं होगा। बी यहाँ दूसरा देखिए, बी इंटेंसिटी ऑफ सी इज लोएस्ट, तो सी वाला ये है आपका, सॉरी सी वाला ये है A2G, इट ओके, ये लोएस्ट हो सकती है, तो ये सी आपका आंसर हो सकता है, ओके। सो दिस कुड बी योर आंसर। नाउ चेक अदर, ए बी सी आर सिमिलर, ए बी सी नहीं, ए और बी आपके सिमिलर होंगे लेकिन सी सिमिलर नहीं हो सकता क्योंकि ये लोएस्ट इंटेंसिटी है, सो दिस कैन नॉट बी योर आंसर। सो यू कैन क्रॉस दिस वन, यू कैन क्रॉस दिस वन। इंटेंसिटी ऑफ बी एंड सी आर आइडेंटिकल, तो बी और सी ये है ना, इनकी आइडेंटिकल नहीं हो सकती क्योंकि ये फॉरबिडन है, ये अलाउड है, फॉरबिडन की हमेशा लोएस्ट होती है, ओके। तो जो ऑप्शन सही नजर आ रहा है आपका, ये वाला ही नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन जो बी है ये करेक्ट ऑप्शन नजर आ रहा है। Intensity of C is lowest. Why? Because it is the forbidden transition. Rest all are actually the allowed transition. Okay, this is how you can solve. And then guys, okay, my next problem, if you see here, an aqueous solution of manganese 2 positive hexa aqua manganese 2 positive complex is the pale pink। अच्छा, ये pale pink बहुत लाइट पिंक है। the probable रीजन इसके लिए क्या हो सकता है, वो रीजन चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात देखिए, पेल पिंक अगर है तो इसमें यह देखना पड़ेगा कि ट्रांजिशन अलाउड है या नहीं है, ओके। तो अलाउड होगा या नहीं होगा इसको देखेंगे। चलिए, उसमें इतनी बात करने से बेटर है वी कैन स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्व दिस वन। मैग्नीज 2 पॉजिटिव, ओके, एंड इट्स अ वीक फील्ड लिगेंड एंड इट्स अ 3D5 सिस्टम, ओके। when it is the 3D5 system, that means 1 2 3 and 5, so you can put 1 2 3 4 and 5 electrons here. So you can write +2 +1 0, okay, and then -1 and -2. So if you calculate the value of L, +2 +1 0 -1 -2, that will give you the 0, okay। अभी आपने देखा L का वैल्यू 0 1 2 3,
SPDF, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, S आ रहा है, ठीक है। और S के लिए टर्म आप इस टेबल में देखिए क्या है, ओके ओके गाइस, सो दिस इज S, और इसके लिए टर्म क्या आ रहा है, यहाँ पे A1G आ रहा है, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। सो दिस A1G इज द टर्म, so 0 belongs to S belongs to A1G, okay. Then spin multiplicity, n plus 1, how many electrons, 5 electrons, 5 plus 1 equals to 6. So if you put that 6 over there, then you will have A1 this, तो ये आपका तो ground state term आ गया. So check the ground state term, okay, this is the ground state term, so A is the correct option. So C cannot be the correct option क्योंकि ये ground state term नहीं आ रहा, okay. CT चार्ज ट्रांसफर ये हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशंस आर आइदर MLCT और LMCT। LMCT के लिए पाई डोनर होना चाहिए, MLCT के लिए पाई एक्सेप्टर होना चाहिए, एंड वाटर इज नाइदर अ पाई एक्सेप्टर नॉर अ पाई डोनर, सो देर इज नो चांस ऑफ दिस वन, ओके। सो A इज करेक्ट, नाउ यू कैन चेक द B, okay. This disallowed transition by the spin selection, whether it is okay or not, we have to check this particular one, okay. Now how actually we will check this transition in that case. Say you are having this particular picture for the octahedral complex, this was EG and this was T2G. How many 5 electrons, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, okay. So in that case, if you see the multiplicity is what, 5 by 2, 5 into 1 by 2, that is 5 by 2. Now if the electron actually jumps over there and transition actually occurs, so during this transition what would happen guys, one electron here, one electron here, and one was there, one was there, एक जंप करके ऊपर चला गया तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा. सो 1 2 3 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाफ स्पिन होता है, दैट मीन 3/2. तो यहाँ पे स्पिन 3/2 है, यहाँ स्पिन आपकी 5/2 है, तो दिस इज स्पिन फॉरबिडन और स्पिन डिसअलाउड. So this is disallowed transition by the spin selection rule. So option A and option B are correct, and now you can check the options. First option A and option B are correct. B, A, C, A, C ये बाकी कुछ है नहीं. So this is how you can solve this particular problem. Okay guys, there is no problem in that. Fine. And since this is the spin allowed, spin disallowed or the spin forbidden transition, that's why the color is the pale. काफी डल कलर आता है, राइट. चार्ज ट्रांसफर के केस में तो वैसे भी बहुत ब्राइट कलर आते हैं, तो चार्ज ट्रांसफर ये हो नहीं सकता. आप मेरे लेक्चर लगातार फॉलो कर ही रहे हैं तो आपको ये सब चीजें मालूम है. ओके गाइस, देन गाइस योर नेक्स्ट प्रॉब्लम, एंड योर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द ग्राउंड स्टेट्स फॉर द हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कोबाल्ट 2 कॉम्प्लेक्सेस. अच्छा, आपको देखिए कोबाल्ट 2 दे रखा है, CO2 positive is given and CO2 positive is it's a 3D7 system, okay. कोबाल्ट 27 होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए क्योंकि 2 पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट है, तो 25 बचे. 25 में आपका क्या है, 18 आर्गन चला गया, फिर 7 बचे आपके, तो 3D7 सिस्टम हो गया. नाउ यू आर ऑब्जर्विंग द हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, okay guys, and in the octahedral field you are observing this one. So what we can do, we can actually see, it doesn't matter whether you put the high spin or the low spin because the electron counts quite high. तो इसको स्प्लिट करने की जरूरत भी नहीं है. मैंने पहले भी बताया है कि हाई स्पिन लो स्पिन वहीं तक चलते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन कम हो, लेकिन जहां पे इलेक्ट्रॉन फिर ज्यादा हो गए आपके 6 से, तो फिर आपका हाई और स्पिन ऐसी कुछ बात रह नहीं जाती. 1 2 3 5, सो यू हैव टू फिल द 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट. सो 1 2 3 4 5 6 7, ओके. नाउ यू कैन कैलकुलेट द L वैल्यू. सो 2 + 2, क्यों, क्योंकि इसके लिए +2 होता है, +2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 इंटू, एक्चुअली में इट इज 2 इंटू 2, ओके, सॉरी, मतलब 2 इंटू 1, ओके. सो 2 इसके लिए, फिर 2 इसके लिए, प्लस इसके लिए कितना होता है, +1. सो +1 इस वाले के लिए, +1 इस वाले के लिए, इसके लिए 0 होता है तो यू कैन राइट 0. इसके लिए -1 होता है, यू कैन राइट -1. इसके लिए -2 होता है, यू कैन राइट -1. सो दिस विल गिव यू एक्चुअली द 6 - 3 = 3. और अभी आपने देखा जब 3 आता है तो टर्म क्या होता है, F, right. Now you can check the spin multiplicity, so you can write n plus 1. How many unpaired electrons, 1 2 3, okay. 3 + 1, that will give you the 4. तो यहां से आप इसको इसके ऊपर पुट कर दीजिए, then your term would be guys 4f, okay. तो ये 4f टर्म आपका हो जाएगा. Now you can refer the Orgel diagram, okay. Now you can refer the Orgel diagram. I can write OD, okay.
तो अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व कर ली हैं, ऑर्गल डायग्राम देखने की जरूरत भी नहीं है। इसके लिए आपका है T1G प्लस T2G प्लस A2G। ओके, मल्टीप्लिसिटी कितना है 4, सो यू कैन पुट ऑलवेज 4 ओवर देयर। नाउ इफ यू सी द ऑर्गल डायग्राम फॉर योर D7 सिस्टम, टेट्राहेड्रल D7 सिस्टम, तो आपको पता चलेगा कि ये आपका ग्राउंड स्टेट टर्म है। ओके, बट टू वेरीफाई वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, आई मे बी रॉन्ग सम टाइम। ओके, so we can correlate with the help of the diagram. So what was the system was our D7. Okay, where is, okay, this is your D7 octahedral, ground state term is T1G. Okay, so you can see here it's a 4 T1G, तो ये इसका ग्राउंड स्टेट टर्म है। ये तो अब देखिए 4 T1G कहाँ का ऑप्शन है, ये तो 4 T2G है, सो दिस कैन नॉट बी योर आंसर। ओके, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्रॉस कर दे, 4 T1G है, ये हो सकता है। 3 T1G इज नॉट द ऑप्शन, सो 4 T1G इज देयर। अच्छा, अब बी और डी में कंपटीशन है। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट फॉर द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ओके, सो यू कैन सी हियर इट्स अ D7 सिस्टम। ओके, एंड इट्स अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए आपको पता है EG नीचे होता है और T2G ऊपर होता है। सो यू कैन पुट योर इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन 1 2, ओके, 3 4 5 6 7, ऐसे ही बढ़ सकते हैं। तो मल्टीप्लिसिटी कितनी आ जाएगी आपकी, 3 + 1 4, मल्टीप्लिसिटी तो 4 ही आनी चाहिए फिर आपकी। ठीक है, अब जो बचे हैं इनमें 4 4 चेक कर लीजिए कौन कौन से हैं। अब देखिए इसमें तो 4 आ ही नहीं रहा, इसमें तो ना मल्टीप्लिसिटी 3 T1 आ रही है, 3 है, जबकि है मल्टीप्लिसिटी कितनी 4। ओके, तो मेरे को लगता है कि इस केस में आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होना चाहिए। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन डू। अब ये 4 तो आ ही गया है। अब अगर आप चाहें भी तो टेट्राहेड्रल में ग्राउंड स्टेट टर्म अगर देखें, सी टेट्राहेड्रल में जो ग्राउंड स्टेट टर्म है वो होता है क्या है, क्योंकि टेट्राहेड्रल में तो उल्टा चलता है। देखिए डायग्राम देखते हैं D7 के लिए टेट्राहेड्रल। ओके, so this is D7. Okay guys, this is tetrahedral, ground state term is what, A2G. Okay, and here you can see the option is A2. G we can remove actually G. Why not G? क्योंकि टेट्राहेड्रल है तो सेंट्रोसिमेट्रिक होता नहीं, तो G यहाँ पे लगना नहीं चाहिए, तो ये आपका इसके लिए आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम गेट 2012। ओके गाइज, so I think this is my last problem. Okay, and my problem is the ground state term for this nickel ion. Okay, nickel 2 positive. So nickel 2 positive is what, it's a 3D8 system, I suppose. Yes, it's a 3D8 system, and this water is the weak ligand. इसको break कर देते हैं। Okay, then you will put your 8 electrons anywhere, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आप निकाल दीजिए इसकी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ओके, देन यू विल हैव योर से 2 + 1 = 3, n+1, 2 अनपेड है, 3 आ गया। ओके, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 होनी चाहिए। अब 3 वाले ऑप्शन देखिए कहाँ का है। अच्छा, ये डी वाला तो हो नहीं सकता आंसर, क्योंकि इसमें 4 आ रहा है। अब इन ओके, अब कोई भी है तो ग्राउंड स्टेट टर्म आपने निकालना है इसके लिए। तो ग्राउंड स्टेट टर्म कैसे निकाल सकते हैं, देखिए। So for your convenience I am drawing it again. Okay, so this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5 6 7 8। Okay, so this is +2 +2 +1 +1 +0 +0 -1 -2 2 2 4 2 6 6 - 3 = 3। 3 के लिए अभी आपने देखा क्या आता है, F टर्म आता है। मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 3F। सो अभी आपने प्रॉब्लम देखी है, 3F में टर्म क्या क्या होते हैं। से यू कैन हैव योर T1G, देन यू कैन हैव योर से T2G, एंड देन यू कैन हैव योर A2G। मल्टीप्लिसिटी 3 है सर, यू कैन पुट 3 ओवर देयर। ओके, एंड इफ यू चेक द ऑर्गेल डायग्राम, ओके, सो ऑर्गेल डायग्राम आप किसके लिए देखना है, D8 सिस्टम ऑक्टाहेड्रल के लिए देखिए। octahedral D8, where is it? Okay, this is your octahedral, this is D8, the ground state term is A2G. So this is your ground state term, 3A2G. Okay guys, so answer would be
3A2G. The option C is actually the correct. So this is how you can solve the previous year problems based on the ऑर्गेल डायग्राम. तो गाइज इतनी प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई हैं, लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखेंगे, कहीं पर भी अगर जॉन टेलर इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, D1 में जॉन टेलर इफेक्ट, D2 में जॉन टेलर इफेक्ट, D4 में जॉन टेलर इफेक्ट, कहीं पर भी जॉन टेलर इफेक्ट अगर आएगा तो जॉन टेलर इफेक्ट की वजह से आपको फिर ये ऑर्गल डायग्राम आपके काम नहीं आएंगे जो बना रखे हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट whatever you have learned so far in the orgal diagram, but whenever see if you say for example जैसे मान लीजिए आपका यही कॉम्प्लेक्स है, से T1H2O whole 6, sorry, okay, and what you can do, you can write say titanium is 23, titanium is 22, okay, so you can write 3 positive, okay, मान लीजिए ये है आपका, तो 22 ऐसे ही था और 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए तो 19 बचा. सर 3D1 सिस्टम, ओके, तो इसमें आपका जॉन टेलर इफेक्ट होगा. और जॉन टेलर 3D1 ऑक्टाहेड्रल के लिए अगर आप देखेंगे सिस्टम 3D1 ऑक्टाहेड्रल के लिए, तो जब इसका यूवी स्पेक्ट्रम देखेंगे तो आपको लगेगा कि ट्रांजिशन तो कम है. देखिए क्योंकि D1 ऑक्टाहेड्रल में सिर्फ एक ही ट्रांजिशन होना है, लेकिन इसके लिए आपको 3 ट्रांजिशन नजर आएंगे फिर इसके लिए, राइट. और वो 3 ट्रांजिशन क्यों होंगे, क्योंकि ये जो टर्म्स हैं आपकी ये स्प्लिट हो जाते हैं, और जब ये टर्म आपके स्प्लिट हो जाएंगे तो फिर ट्रांजिशंस की जो है नंबर भी बढ़ जाते हैं. एंड इट ऑलवेज हैपन्स एक्चुअली में, क्योंकि बहुत सारे लगभग सभी कॉम्प्लेक्स जो हैं आपके जॉन टेलर इफेक्ट जो है डिस्टॉर्शन में जाते हैं. तो ये चीजें आप में फिर याद करनी पड़ेगी, रटनी पड़ेगी. एंड माय सजेशन इज दैट सी आई ऑलवेज रेफर दैट बुक अजय कुमार, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बाय अजय कुमार. लेकिन ऑर्गल डायग्राम्स पढ़ने के लिए वो बुक इतनी बढ़िया नहीं है, क्योंकि ऑर्गल डायग्राम सिर्फ और सिर्फ ट्रिक से ही सीखे जा सकते हैं जो मैंने आपको बताई है, या पहले आपने किसी और से भी सीखी होगी, या खुद आप जानते होंगे, कोई भी ट्रिक आप लगा सकते हैं. लेकिन प्रॉब्लम अगर सॉल्व करनी है तो फिर अजय कुमार से आप ले सकते हैं. हालांकि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो अजय कुमार की एक्सरसाइज में दी है, दे आर एक्चुअली फ्रॉम द प्रीवियस ईयर गेट एंड द नीट एग्जामिनेशन. आई हैव सॉल्व दोस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स हियर. और कुछ प्रॉब्लम बची है वहां से सॉल्व करिए. और टेक्स्ट बुक में जो उनकी बुक है, टेक्स्ट के अंदर जो प्रॉब्लम दी है जॉन टेलर की D1 D2 D3 सारे सिस्टम्स के लिए, उनको सॉल्व करके याद करने की कोशिश करिए, तो उस हिसाब से फिर आपको फायदा होगा. एंड सी दिस एक्चुअली आई ऑलवेज से कि जब तक आप प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं जानेंगे और प्रॉब्लम अप्रोच करना नहीं जानेंगे, देन देयर इज नो मीनिंग ऑफ लर्निंग द कॉन्सेप्ट. एक्चुअली यू हैव टू अप्लाई योर लर्न कॉन्सेप्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम. इफ यू आर नॉट एबल टू अप्लाई दोस लर्न कॉन्सेप्ट इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि नेट और गेट में या IIT जैम में कभी भी इस तरीके की एग्जाम प्रॉब्लम जो है सिंपल तरीके से नहीं आएंगी. यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. सो गाइस, दिस कंप्लीट्स योर ऑर्गल डायग्राम. And very quickly say maybe tomorrow or the day after tomorrow I'll take the final lecture on the magnetic properties. उसके अलावा मैं मान के चलता हूँ कि मैं 95% के आसपास कोऑर्डिनेशन करवा चुका हूँ. 5% कुछ ना कुछ छूटा रहेगा, उसको बीच बीच में पिक करते रहेंगे. जैसे जैसे नेफेलोस्टिक सीरीज है या नेफेलोस्टिक इफेक्ट है, वो छूटा हुआ है तो उसको कहीं बीच में पकड़ लेंगे, या पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम से उनको कहीं बीच में पकड़ लेंगे फिर. लेकिन इसको खत्म करने के बाद से बहुत जल्दी मे बी फ्रॉम थर्ड और फोर्थ आई विल स्टार्ट योर organometallic compounds. Okay guys, so that's it for today. So if you are understanding the concept and you are liking my lecture, don't forget to like the lecture, right? Subscribe to Tetrahedron Chemistry classes, share with your friends, and hit the bell icon for the latest notification. Thank you very much.